جھوٹی محبت گھر سے بھاگنے کی سزا قسط نمبر 1۔ میرا نام نیلم ہے اور میری یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 15 سال کی تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ گھر میں امی ابو اور 2 چھوٹے بہن بھائی تھے جو مجھے بہت عزیز تھے۔ میں گھر میں بڑی تھی، روز اسکول اور اسکول سے گھر مجھے پڑھنے کی بے حد شوق تھا۔ ان دنوں موبائل فون عام نہ تھے۔ اسکول میں میری ایک دوست تھی، اس کا نام مینا تھا۔ اس کے پاس موبائل فون تھا اور وہ اسکول میں بھی لاتی۔ بہت ہوشیار تھی، آج تک ٹیچر کو پتہ نہ لگ سکا تھا کہ میں اور مینا کبھی پانی پینے کے بہانے سے یا کبھی بریک میں پچھلی طرف کا رخ کرتے اور ٹینکی کے ساتھ لگ کے موبائل فون استعمال کیا کرتے تھے۔ اس مسلفی اور ادھوری خواہشات سے بھری اس زندگی میں یہ ایک وقت میرے لیے بہار کا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے مینا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بھی دل کرتا ہے موبائل فون لینے کا، تو وہ مسکرا دی، پھر کچھ بولی نہیں۔ یوں ہی زندگی کٹتی رہی۔ 2 ہفتے بعد مینا نے مجھ سے کہا کہ بلال میرا کزن ہے اور وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک بار تم اس سے مل کے اس سے بات سن لو۔ میرے لیے یہ الفاظ بالکل نئے تھے۔ میں بھول کر بھی کبھی یہ سوچ ذہن میں نہ لا سکتی تھی جس میں میں بنا کسی جائز رشتے کے ایک غیر مرد سے خود کو جڑتا ہوا پاؤں۔ اس بات پر میں نے کافی غصے کا مظاہرہ کیا اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی ہمارے لیے۔ خیر رات کے کھانے کے بعد میں نے اپنے بستر پر لیٹی۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا جس میں 2 کمرے تھے، ایک میں دکان کھول رکھی تھی اور دوسرے میں ہم سب رہتے۔ لیٹے لیٹے ایک بار پھر مجھے مینا کی بات یاد آ گئی۔ زندگی میں یہ سب کچھ نیا تھا، تب ہی یہ بات پوری طرح میرے حواسوں پر سوار تھی۔ کتنی معصوم ہوا کرتی تھی میں۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں اسکول کی وردی پہنے ناشتے کے لیے آ بیٹھی۔ امی پراٹھے بنا رہی تھی۔ میں نے دیکھا صرف 3 ہی روٹیوں کا آٹا تھا جو امی نے ہم تینوں کو بنا دیا تھا۔ میرے بہن بھائی اس بات سے بے خبر چائے پراٹھے کا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے اور میں یہ کہہ کے اٹھی گئی کہ مجھے بھوک نہیں لگی کیونکہ بیٹا تم نے سارا دن وہاں پڑھنا ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ تو کھا لو۔ امی بولی مگر میں منع کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ میرے 3 ماہ کی اسکول فیس باقی تھی اور ہماری پرنسپل نہایت بد زبان بد لحاظ تھی۔ ایک ہفتے سے وہ روز مجھے کلاس روم میں آ کر ویران کر رہی تھی۔ میں نے انہیں سوچوں میں گم کہا کہ آج میڈم کو کیا جواب دوں گی۔ گھر سے اسکول کی طرف نکل گئی۔ امی سے روز کہتی تھی اور امی کا یہی جواب ہوتا، بیٹا کل دے دیں گے۔ میں جانتی تھی آج بھی ان کے پاس کوئی فیس نہیں تھی، تب بھی چپ چاپ اسکول آ گئی اور آج بھی یاد ہے کہ اس دن فیس نہ دینے پر میڈم نے پوری کلاس کے سامنے مجھے ذلیل کیا اور خوب مارا بھی۔ میں واش روم میں جا کر بہت روئی۔ میڈم نے کہا کل فیس کے ساتھ آنا ورنہ مت آنا۔ پیپر ہونے والے تھے، پورا سال برباد ہو جاتا۔ مینا نے مجھے تسلی وغیرہ دی مگر میں سچ جانتی تھی۔ امی کو بتایا تو امی کیا کر سکتی تھی، وہ رونے لگ گئی۔ والد صاحب بہت عیاش طبیعت کے مالک تھے، شراب نوشی بھی عادت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کو اپنی اولاد سے محبت ہی نہیں تھی۔ وہ ہم سے ہمارے مسئلہ اور ضروریات پوچھتے تک نہیں تھے۔ پہلے تو وہ نوکری بھی نہیں کرتے تھے، پھر ان کے ایک دوست نے کسی طرح سمجھا بجا کر کے نوکری پر لگوا دیا۔ ان کی تنخواہ وہ بس خود ہی خرچ کرتے تھے، کبھی تو امی کی دکان کا منافع بھی لڑ جھگڑ کر لے لیا کرتے تھے۔ آج جب ابو گھر آئے میں نے ان کے پاس جا بیٹھی۔ وہ شراب پی کے آئے ہوئے تھے۔ میں نے فیس کے پیسے مانگے تو وہ جوتا اٹھا کر مجھ پر برس پڑے اور جب تھک چکے تو میں اپنے بستر پر جا کے لیٹ گئی اور آنسو بہانے لگی اور اپنی پڑھائی چھوٹ جانے کا سوگ منانے لگی۔
2 दिन बाद मीना मेरे घर आई और बोली, तुम्हारी फीस मैंने दे दी, कल से तुम स्कूल आ जाना। मैं इस वक्त इसकी बहुत शुक्रगुजार हुई और अम्मी ने उसको जल्द ही पैसे लौटा देने का वादा भी कर लिया। मैं फिर से स्कूल जाने लगी। मैं बहुत खुश थी, हमेशा से बस पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। आज जब स्कूल की छुट्टी पर हम लोग निकले तो स्कूल के बाहर एक लड़का मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं घबरा सी गई और तेज़ तेज़ कदम उठाती घर को चल दी। बताती चलूँ, मीना और मैं वापसी पर अलग अलग जाते थे। वो लड़का मेरा पीछा करने लगा। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए। वैराना शुरू हो चुका था। सख्त दोपहर का वक्त था। आसपास कोई बंदा, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। जिस पर इस नौजवान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी सुनी, मैंने रुकने की जगह तेज़ी से चलने लगी। देखे मेरी बात सुने, मैं बिलाल हूँ। मीना मेरे चाचू की बेटी है। सुने उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया, जिस पर मेरी जान ही निकल गई। मुझे कुछ समझ न आया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जबकि वो जहर लब मुस्कुरा रहा था, जैसे मेरी मासूम मीत पर उसको बेहद प्यार आया। उसने मेरे माथे पर बोसा दिया और वहाँ से वापस चला गया। मैं वहीं खड़ी उसको जाता देखती रही। फिर कुछ देर बाद जैसे होश में आई। ये पहली बार था जब मुझे किसी गैर मर्द ने छुआ था, जिसने मेरी रूह तक को झंझोर डाला था। मैं खुद को मेल सी तस्वर करने लगी, जैसे इसके छूने से मैं मैली हो गई हूँ। घर आकर बस्ता फेंका, टैंकी से पानी लिया और नहाने चल दी। अगले दिन भी उसने इसी तरह मेरा पीछा किया। अब तो रोज़ का मामूल था। यही बर्दाश्त की हद हो चली थी। फिर एक दिन मैंने उसको ठीक ठाक सुना दी, जिस पर वो कुछ ना बोला और चला गया। और फिर उसने मेरा पीछा ना किया। शब व रोज़ सुकून से गुजरने लगे कि एक दिन मीना मेरे साथ मेरे सुख चैन को आग लगा दी, ये बता के कि पूरी फीस मीना ने नहीं बल्कि बिलाल ने भरी थी और उसने मुझे हर हाल में ये बात बताने से मना किया था, ताकि मेरी खुददारी को कोई ठोस ना दे। ये जानकर मुझे अच्छा ना लगा और उस दिन मैं बहुत रोई थी कि बाप के ज़िंदा होते भी आज मुझे किसी गैर मर्द की भीख पर पलना पड़ रहा है। मगर वो ऐसा कर क्यों रहा है? क्या वाकई उसको मुझसे मोहब्बत हो गई? ये ख्याल आज मेरे लबों पर ना जाने क्यों मुस्कुराहट ले आया था, लेकिन मैं एक बोझ तले दब गई थी। अब वो मेरा पीछा ना करता था और ना उस दिन के बाद मैंने उसकी शक्ल देखी। पता नहीं क्यों मुझे एक कमी सी महसूस होने लगी। ये क्या था? खुद को कोसती भी, मगर इन दिनों खुद पर बस ना चल रहा था। वक्त गुजरता गया। अब तो मुझे बाकायदा उसकी याद सताने लगी थी। उसकी बोली हुई बातें, अल्फाज व प्यार का इजहार मेरे कानों में गूंजता। यूं लगता जैसे मैं कोई गलती कर बैठी हूँ। उसका दिल तोड़ दिया मैंने। उसकी याद से भरी ज़िंदगी में कोई आया था मेरे पास, मेरे दुख में मेरा साथ देने, मदद करने। वो गैर होकर भी कोई अपना था। फिर एक दिन वो वक्त ही आ गया जब वो फिर से मेरी ज़िंदगी में आया। मीना ने मुझे एक मोबाइल फ़ोन पकड़ाया और कहा, बिलाल तुमसे बात करना चाहता है। मैं मोबाइल फ़ोन देखकर घबरा गई और बोली, नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। जिस पर मीना ने कहा, पागल, ये मेरा फ़ोन है, बस तुम इससे बिलाल से बात कर लो। बताती चलूँ, मैं अपने दिल की हर बात मीना से कहती थी। मैंने वो फ़ोन लेकर बैग में डाल लिया। ये टच मोबाइल का दौर ना था। तब वो फ़ोन इतने आम ना थे। मीना ने इस फ़ोन पर SMS पैकेज करवा दिया था और बिलाल का नंबर भी डाल दिया था। दिन तो घर के काम और पढ़ाई करते हुए गुजर गया, मगर रात बहुत भारी हो चुकी थी। बार बार ध्यान इस फ़ोन की तरफ चला जाता, मगर मैं खुद को बहलाने लगती। सब लोग घर में सो चुके थे। मैंने उठकर एक नज़र सब पर डाली।
और सोचा फ़ोन देख लेती हूँ, देखने में क्या हार जाए। ये सोचकर मैंने उठी और फ़ोन उठाया और धड़कते दिल के साथ चादर में घुस गई, कहीं कोई देख ना ले। फ़ोन देखा तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था। दिल धक धक करने लगा। वो बिलाल का मैसेज था, नीलम कैसी हैं आप, मुझे गलत मत समझिए, मैं एक इज़्ज़तदार घर का शरीफ लड़का हूँ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तीसरा साल है मेरा। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको जीवन साथी के रूप में तस्वर करने लगा हूँ। आप हाँ करती हैं तो वालिद को भेज दूँगा आपके घर और हमेशा के लिए अपनी इज़्ज़त बना लूँगा, मगर आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर मेरी बात से आपको एतराज़ नहीं तो बस हाँ का मैसेज कर देना। आपका बिलाल। ये एक तफसीली मैसेज था जिसको आप पढ़ने के बाद ना जाने क्यों दिल गदगदाने सा लगा। मुझे गुस्सा ना आया बल्कि मेरी आंखें भीग गई। आपको क्या बताऊं बिलाल के पिछले दिनों किस तरह आप मेरे दिल में बस चुकी हैं, कौन जानती तक नहीं, लेकिन आपकी आंखों में जो सच्चाई की चमक है ना, वो यकीन दिलाती है। आपको कोई अपने हैं, बहुत अपने। एक बार गलती कर दी, अब आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं जज्बात में बहकर अपने दिल का सहारा हाल इससे कह गई। कभी सोचा भी नहीं था किसी गैर से मैं इस तरह की बात करूंगी, मगर ये मोहब्बत सब कुछ करवा लेती है इससे। ये सब कहकर मुझे एक सुकून सा मिला था और मुसलसल आंखों से आंसू जारी थे। इसका जवाब आ गया। मैसेज की वाइब्रेशन से दिल में खुशी सी कुछ हुआ और मैंने जल्दी से उसका मैसेज खोला। शुक्रिया मेरी मोहब्बत को समझने के लिए। अब दुनिया से लड़ जाऊंगा मगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। वादा रहा। जिस पर मैंने जवाब में लिखा, आज से पहले मैंने कभी किसी के लिए ये सब कुछ महसूस नहीं किया जो आज मैं कर रही हूँ। बरसों बाद एक सच्ची खुशी मिली जिस पर उसका मैसेज था, आई लव यू। मैंने भी बोल दिया आई लव यू टू, और यहीं से हमारी मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ा। अब हम रोज़ रात को मैसेज पर बात किया करते थे। उसने रिश्ता भेजने के लिए बहुत बार इसरार किया, मगर मैंने उसको ये कहकर मना कर दिया कि मेरा स्कूल ख़त्म हो जाएगा, फिर तब तक आप भी डॉक्टर बन जाएंगे। 6 माह गुजर गए। इस दौरान बिलाल मुझसे इस कदर मोहब्बत हो चुकी थी कि मैं इसकी खातिर 100 बार भी मर सकती थी, और उसी पागलपन में बहकर मैं इसके बेहद इसरार पर अपनी हर हद पार कर चुकी थी। अपना दुपट्टा इसकी नाराज़गी की भेंट चढ़ा चुकी थी। अब वो मुझसे हकीकत में ये गुनाह करने के लिए बाज़िद था जो मैं कभी ना चाहती थी, जिस पर वो मुझे छोड़ जाने की धमकी देता, मेरे सामने रोता गिड़गिड़ाता, मगर मैं कोई जवाब न देती बल्कि उसको प्यार से मनाने लगती। वो ना सुनता। तब मैंने एक दिन गुस्से में आकर उससे राब्ता ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो वो कह रहा था वो मेरे बस में ना था। अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।